जी सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ मैं धर्मपाल सिंह हिसाब मास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल पतारा विखे आप जी का स्वागत कर रहा हाँ। विद्यार्थियों असी क्लास 9वीं का 7वां चैप्टर त्रिभुजां या ट्राइंगल्स जिहड़ा हैगा आ वो असी कर रहे हाँ। इस तो पहलों असी चैप्टर शुरू कर चुके हाँ ते चैप्टर दे विच असी त्रिभुजां दे बारे जानकारी लई। त्रिभुजां दे विच जिहड़ी सर्वंगसमता हुंदी है ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ नियम ਹੈਗੇ ने ਜਿਹੜੇ दो त्रिभुजां ਨੂੰ ਸਰਵੰਗਸਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ 7.1 ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਆਓ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਭਿਆਸ 7.1 ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਅਭਿਆਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਡੀ 7.1 ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। प्रश्न नंबर 4 की कह रहा है दो समानांतर रेखावां L ਅਤੇ M एक होर समानांतर रेखावां दे जोड़े P ਅਤੇ Q P ਅਤੇ Q ਦੁਆਰਾ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। सिद्ध करो की सिद्ध करना जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सिद्ध करना त्रिभुज ABC ਸਰਵੰਗਸਮ है त्रिभुज CDA। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਆਹ ਦੋ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ L ਅਤੇ M ਹਨ। ਆਹ ਦੋ ਕਾਟਵੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹਨ P ਤੇ Q। ਇਹ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ A ਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ B, ਇਹ ਬਿੰਦੂ C ਹੈ ਤੇ ਆ D ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਤੇ B, C ਤੇ D ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਦੋ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ L ਅਤੇ M, ਆ ਦੋ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੇ L ਅਤੇ M ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ P ਅਤੇ Q। ਦੇਖੋ P ਅਤੇ Q ਦੁਆਰਾ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। देखो आ दो समानांतर रेखावां हन ते आ वालियां दो समानांतर रेखावां इन्हां दोहां नूं कटदियां हन। सिद्ध करो कि त्रिभुज ABC आ पहली त्रिभुज सर्वंगसम है त्रिभुज CDA दे, आ दूसरी त्रिभुज दे जो है ये सर्वंगसम है। इत्थे विद्यार्थियों मैं इहदा हल करन तो पहलों इहदा इधर हल करन तो पहलों असीं की करांगे इस चित्र दे विच कुछ सुधार करांगे। ठीक है जी। इहदे विच की करदे हां ਅਸੀਂ ਕੋਣ ਇਹਨੂੰ ਕੋਣ 1 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਣ 2 ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਣ 3 ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਣ 4 ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵੰਗਸਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਿਯਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਣ ਦਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਂਝੀ ਰੇਖਾ ਹੈ AC ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਨੇਮ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ L समानांतर है M। देखो विद्यार्थियों ध्यान L समानांतर है M ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਬਿੰਦੂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਹੇਠਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ L समानांतर है M ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਣ 1 ਬਰਾਬਰ ਕੋਣ 2 ਐ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਨਾਲ। L समानांतर है M ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਇੱਕ ਕਾਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਆ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਕਾਂਤਰ ਕੋਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆ ਇੱਕ L ਤੇ M ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹਨ ਤੇ ਆ ਇਹਦੀ ਕਾਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਹੈ। ठीक है जी। ਇਹਦਾ मतलब कोण 1 ਅਤੇ कोण 2 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ
ਇਹ ਕੀ ਹਨ एकांतर कोण। ये दो की ने एकांतर कोण ने इसे तरह इनू साइड रख देंगे हले। हुण इसे तरह की है जी, देखो P ते Q दोने समानांतर ने, जेड़ा P समानांतर है Q दे, ठीक है जी, इसलिए ठीक है, क्योंकि P समानांतर है Q, इसलिए कोण 3 बराबर है कोण 4 दे। आ कोण 3 कोण 4 के बराबर है। देखो फिर यही गल है, आ दो समानांतर रेखावां, आ इहदी काटवी रेखा है, ਇਹਦਾ मतलब कोण 3 ते कोण 4 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਰਾबर ਨੇ, क्योंकि ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਅੰਦਰਲੇ एकांतर कोण ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ कोण 1 कोण 2 ਦੇ ਬਰਾबर ਹੈ ਤੇ कोण 3 कोण 4 ਦੇ ਬਰਾबर ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਨਾਂतर ਰੇਖਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹਦੇ ਜੋੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, समानांतर रेखावां दे जोड़े दिते ने। काटवी रेखा असीं बनाई हुई है क्योंकि उन्हें प्रश्न दे विच सानू ए बी दा जिक्र कीता है, ठीक है जी, ए बी सी दा जिक्र कीता। ए बी सी तद ही बनेगी जेकर असीं ए ते सी नू मिलाउंदे हां। हुण आ दो समानांतर रेखावां, आ इहदी काटवी रेखा, इस करके ए अते 1 अते 2 जिहड़े हन ओह एकांतर कोण हन। इसे तरीके दे नाल P अते Q दोवें समानांतर रेखावां हन ते आ जिहड़ी AC है इहदी काटवी रेखा है। इस करके 3 अते 4, 4 अते 3 या 3 अते 4 जो है वो की हन इहदे एकांतर कोण हन, ठीक है। अच्छा विद्यार्थियों हुण देखो साडे कोल कितना वधिया चीज बन गई, साडे कोल कोणां दे संबंध आ गए, बड़ा अच्छा हो गया। हुण साडे कोल काम आएगा त्रिभुज, किहड़े दो त्रिभुज सी ABC अते त्रिभुज CDA विच देखो जी की है जी, कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4। देखो कोण 1 कोण 2 दे बराबर है, कोण 3 कोण 4 दे बराबर है। ये क्यों ने सिद्ध किया? देखो जी असी इस चीज नू सिद्ध कर चुके हां। देखो ऊपर सिद्ध किया ना पाए चीज, इस करके पाए चीज लिख दी थे। अते AC बराबर है AC इथे सांझा, AC AC दे बराबर है, क्यों है? क्योंकि सांझा है। ਇਹਦਾ मतलब ये होया कि त्रिभुज ABC सर्वंसम है त्रिभुज CDA दे, CDA दे सर्वंसम है। आ जिहड़ा हैगा साडे कोल नतीजा इस प्रश्न का आ गया, ठीक है। मैं उम्मीद करता हां तुसीं इस नूं समझे होवोगे। एक बारी मैं फिर हल्का जिहा इहनूं रिपीट कर देवां। उन्हें सानूं कहा सी दो समानांतर रेखावां L अते M एक होर समानांतर रेखावां दे जोड़े P अते Q द्वारा कटियां जांदियां हन। सिद्ध करो त्रिभुज ABC सर्वंसम है त्रिभुज CDA। आ दो जोड़े सानूं दित्ते होए सीगे L ते M ते P ते Q। AC जिहड़ी सीगी ये काटवी रेखा है, L ते M दी भी काटवी रेखा है ते P ते Q दी भी ये काटवी रेखा है। इस करके 1 अते 2 ਇਹਦੇ एकांतर कोण बनते हैं ते ਉਹ बराबर हैं। P ते Q समानांतर हैं, इस करके 3 अते 4 ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ कोण एकांतर कोण बनते हैं ते इस करके बराबर हैं। उस तो बाद ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ त्रिभुजां ਨੂੰ ਅਸੀਂ साबित करना ਸੀਗਾ कि ਉਹ ਸਰਵੰਸਮ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੋ त्रिभुजां ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कोण 1 बराबर कोण 2 कर दिता, सिद्ध कर दिता ऊपर, कोण 3 बराबर कोण 4 सिद्ध कर दिता ऊपर, ते AC बराबर AC क्योंकि ये सांझी भुजा है इस करके इत्थे सांझी भुजा लिख दिता। ये की आ सांझी आ, ठीक है जी। ते इसलिए 3 चीजां हो गईयां ते इहदा कारण की हैगा आ, ये हैगे ने दो कोण, यानी कि कोण भुजा कोण दा जिहड़ा नियम है ਉਹਦੇ तहत ਅਸੀਂ कह सकते हां कि यह त्रिभुज जिहड़ी हैगी दोवें त्रिभुजां आपस दे विच सर्वंसम हैं। चलो आओ विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हां तुसीं इहनूं समझे होवोगे। आओ असीं हुण इसदे अगले प्रश्न वाल चलिए। इसका अगला प्रश्न भी देखने में जिन्ना तुहानूं मुश्किल लगेगा, हजे तक असीं जिन्ने भी प्रश्न कीते हैं विद्यार्थियों वो सारे प्रश्न देखने में तो मुश्किल लगते हैं, लेकिन असल दे विच जदों असीं उन्हां नूं करन लगदे हां तां पता लगता है कि बहुत ही सिंपल ते छोटे छोटे प्रश्न ने, सिर्फ उन्हां दी स्टेटमेंट्स वड्डियां ने। प्रश्न नंबर 5 है, ਉਹਨੂੰ शुरू करते हैं ਅਸੀਂ। प्रश्न नंबर 5 है, रेखा L कोण A ਨੂੰ समदोभाजित करती है। समदोभाजित करती है। रेखा L कोण A ਨੂੰ समदोभाजित करती है ਅਤੇ B L उत्ते कोई बिंदु है।
बीपी ਅਤੇ BQ बिंदु B तो कोण A दियां बाहां उत्ते लंब हन। सिद्ध करो, की सिद्ध करना जी असी त्रिभुज APB सर्वंगसम है त्रिभुज AQB दे। ये चीज असी सिद्ध करनी है पहले नंबर ते दूसरे नंबर ते असी सिद्ध करना है BP बराबर है BQ दे। लेकिन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ चित्र भी सानू जो है उसका दिता होया है। सो चित्र ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ चित्र है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿੰਦੂ A है। इस A बिंदु ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ L लाइन है वो इस कोण A ਨੂੰ सम ਤੋਂ ਭਾਜਿਤ ਕਰਦੀ है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਦੋ ਕੋਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾबर ਹਨ। फिर उन्हें क्या सीगा कि L ਦੇ ਉੱਤੇ कोई बिंदु B है, L ਦੇ ਉੱਤੇ कोई, देखो B L ਉੱਤੇ कोई बिंदु है, देख लिया जी। ते BP ਅਤੇ BQ, ਇਹਦਾ मतलब BP ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦੋ, ਇਹ ਲੰਬ है, आ P हो गया जी, सॉरी P है जी। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ BQ ਲੰਬ है ਜਿਹੜਾ दूसरी भुजा ਦੇ ਉੱਤੇ, ठीक है जी। ਇਹਦਾ मतलब AQ ਤੇ BQ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਟਰਮਸ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਣ 1 ਤੇ ਕੋਣ 2, ठीक है जी। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ठीक है जी। ਰੇਖਾ L ਕੋਣ A ਨੂੰ ਸਮ ਦੋ ਭਾਜਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਣ ਦੇ 2 ਨੂੰ ਸਮ ਦੋ ਭਾਜਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਣ A ਨੂੰ देखो ਇਹਨੇ ਸਮ ਦੋ ਭਾਜਿਤ ਕਰਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੋਣ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਕਰਤੇ। ਕੋਣ 1 ਕੋਣ 2 ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। B L ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਿੰਦੂ ਹੈ, B ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ L ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਲੈ ਲਿਆ। BP ਅਤੇ BQ, ਆ ਦੇਖੋ ਆ BP ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆ BQ ਹੋ ਗਿਆ। B ਤੋਂ ਕੋਣ L ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਉੱਤੇ, ਕੋਣ L ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਉੱਤੇ, ਕੋਣ A ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲੰਬ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਆ ਕੋਣ A ਦੀ ਬਾਹ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਣ A ਦੀ ਬਾਹ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋ ਲੰਬ ਨੇ P ਤੇ Q ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਇਹ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ APB ਅਤੇ AQB ਦੋਵੇਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵੰਗਸਮ ਹਨ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਧਰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਤ੍ਰਿਭੁਜ ABP ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ AQB ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। जो सानू दिता होया असी सब तो पहले उन्हां दी गल करदे। उन्हें सानू ये दिता होया कोण 1 बराबर कोण 2। ਇਹਦਾ कारण की है जी, ਇਹਦਾ कारण ਇਹ आ कि L कोण A ਨੂੰ सम 2 ਭਾਜਿਤ करदा या करदी है। L ਜਿਹੜੀ ਰੇਖਾ है वो कोण A ਨੂੰ सम 2 ਭਾਜਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਰਦੀ है, ठीक है जी। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ है जी ਸਾਡੇ ਕੋਲ कोण P बराबर है कोण Q दे। कोण P ते कोण Q दोनों आपस में की ने बराबर ने, ठीक है विद्यार्थियों। ये थोड़ा जा खराब हो गया, सॉरी। कोण P ते कोण Q आपस में दोवें बराबर ने, क्यों ने, क्योंकि ये दोवें 90 डिग्री दे हन। क्यों हन, उन्हें दिता होया सानू कि ये दोनों बाहां उत्ते लंब हन। देखो लंब हन, इस करके कोण P ते कोण Q दोनों कितने हो गए 90 डिग्री दे। AB बराबर AB, ਇਹ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਸਾਂਝੀ ਭੁਜਾ। ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਭੁਜਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤ੍ਰਿਭੁਜ APB ਸਰਵੰਗਸਮ ਹੈ ਤ੍ਰਿਭੁਜ AQB ਦੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵੰਗਸਮ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਰਵੰਗਸਮ ਹਨ? ਇਹ ਹਨ ਕੋਣ ਭੁਜਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੋਣ ਤੇ ਆ ਭੁਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਰਾबर ਹਨ। आपने याद होएगा जो असी इस नियम पहला नियम किया सी उहदे विच असी की किया सी, उस दे विच असी गल कीती सी कि कोण भुजा ते कोण दा नियम जिहड़ा हैगा असी सिद्ध कीता सी।
लेकिन उस तो बाद असी इस रिजल्ट नूं अगे खंगाल के गल कीती सी कि जेकर साडे कोल कोण कोण भुजा जिहड़ा है यह भी आ जाएगा तां भी जिहड़ा हैगा आ ये दोवें त्रिभुजां आपस दे विच सरबंसम होणगियां। ओहदा कारण मैं आप जी नूं कहा सीगा कि तुसीं सारे इस चीज नूं घर जाके मतलब घरे तुसीं बैठे ही हो, घर बैठ के तुसीं इस चीज नूं बड़े वधिया तरीके नाल सोचो ते ये दसो कि ये क्यों बराबर ने। ओहदा कारण मैं तुहानूं हुण दसदा है कि ये दो कोण ने, इधर भी दो कोण ने, ठीक है जी। जेकर किसी दो त्रिभुजां दे दो कोण आपस दे विच बराबर ही होण तां ओहदा तीसरा कोण हमेशा आपस दे विच बराबर ही हुंदा है। ओहदा कारण यह है तिन्ना कोणों का जोड़ हुंदा 180 डिग्री, ठीक है जी। त्रिभुज दे तिन्ना कोणों का जोड़ कितना हुंदा 180 डिग्री। जेकर दो कोण बराबर हैं तो तीसरा ऑटोमेटिकली ही बराबर होएगा क्योंकि तद ही तां वो आपस दे विच उन्हां दा जोड़ 180 दे मिलान करेगा ना, ठीक है जी। सो आ जिहड़ी चीज है इस करके आ चीज जिहड़ी बिल्कुल सही साबित हुंदी है जिहड़ी कि असीं इस सवाल दे विच लगाई है कोण कोण भुजा। जे तुसीं इस चीज नूं नहीं भी लगाना चाहते तां फिर भी आपां इहनूं कर सकते हां। असीं फिर यह गल कहनी सी कि आ वाला कोण ये कोण दे बराबर है क्योंकि यह त्रिभुज का तीसरा कोण है। जेकर त्रिभुज दीयां दो कोण बराबर होण तां तीसरा कोण आपस दे विच बराबर ही हुंदा है। तो फिर आपां इहनूं कोण भुजा कोण कह सकते सीगे, लेकिन एडा लंबा जाण दी लोड़ नहीं हुंदी। जेकर दो कोण कोई दो कोण त्रिभुज दे दूसरे त्रिभुज दे दो कोणां दे बराबर हैं ते एक भुजा बराबर है तद भी जिहड़ियां त्रिभुजां जिहड़ियां आपस दे विच की होणगियां सरबंसम होणगियां। ते सरबंसम त्रिभुजां दे जिहड़ा पार्ट बी उहने किया है, ये पहला पार्ट सॉल्व कीता आपां। पार्ट बी दे विच उहने किया बीपी बराबर बीक्यू, उन्हें सिद्ध करने लई किया आ देखो बेटा आ बीपी है ते आ बीक्यू है। उन्हें क्या प्रूफ करो सिद्ध करो कि बराबर ने, बराबर हैगे आ। क्यों बराबर ने? सीपी सीटी अंग्रेजी भाषा दे विच लिखिया मैं पहले भी दस्सिया सी तुहानूं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है जी। यानी कि सरबंसम त्रिभुजां दियां संगत भुजावां जिहड़ियां हैगियां आ वो आपस च बराबर हुंदियां हन। इस करके ये भी चीज जिहड़ी हैगी वो सिद्ध होगी। सो ये साडे कोल पंजवां प्रश्न सीगा। आओ विद्यार्थियों असीं चलदे हां अपने अगले प्रश्न दे वल। अगला प्रश्न नंबर 6 साडे कोल है, उहदे विच थोड़ी जी चीज रलदी मिलदी होएगी, थोड़ी सोच थोड़ी जी डूंगी करनी पेगी उहदे वास्ते। हले तक सानू जो भी चीजां सीगियां वो सारियां सीधे तौर ते दित्तियां हुंदियां सी, लेकिन हुण जिहड़े हैगे आ सवाल थोड़े जे साडे कोल ट्रिकी आणगे। किवें? हुण इहदे विच ओह कह रहा है कि चित्र दित्ता होया जी, चित्र विच चित्र मैं बाद विच बनावांगा। चित्र विच AC बराबर AE, AB बराबर AD अते कोण BAD बराबर है कोण EAC है। सिद्ध करो, देखो सिद्ध करना जी असीं की सिद्ध करना BC बराबर DE, आही चीज सिद्ध करनी है जी उन्हें। इस करके नंबर 1 पाने की लोड़ नहीं है। सिद्ध करो कि आ दोवें बराबर हैं, ठीक है जी। आ दोवें आपस दे विच की हैं बराबर हैं, ये चीज मैं सिद्ध करनी है, ठीक है। सिद्ध करने तो पहले चित्र बनावांगे तभी पता लगेगा स्टेटमेंट की है जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ आ A है जी, आ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ B ਇਹਦਾ, ਆ ਹੈਗਾ ਜੀ C, ਆ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ C ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ D ਤੇ ਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ E, ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ E ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ AC बराबर AE, AC बराबर है AE, यानी कि आ भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक है जी। उस तो बाद उन्हें सानू कहा कि AB बराबर AD, आ AB आ AD के बराबर है। इसका मतलब आ भुजा इस भुजा के आपस दे विच बराबर है, ठीक है जी। फिर उन्हें कहा कोण BAD, BAD यानी कि आ वाला कोण बराबर है कोण EAC, EAC यानी कि आ वाले कोण के बराबर है, ठीक है। फिर मैंने कह रहा सिद्ध की करना है BC बराबर DE, आ है जी BC बराबर DE यानी कि आ पूरी रेखा नू इस पूरी रेखा दे बराबर मैं सिद्ध करना चाहता हां। देखो विद्यार्थियों ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है थोड़ा जिहा सोचण ਦੀ लोड़ है। सोचण ਦੀ लोड़ की है, एक गल तां मैनूं पता है कि दो रेखावां नूं दो इस चित्र दे विच दो रेखावां नूं मैं आपस दे विच दो भुजावां नूं आपस च बराबर करना चाहना है। वो तद ही बराबर होणगियां जिस त्रिभुज दीयां वो भुजावां होणगियां। जेकर उन्हां दो त्रिभुजां नूं मैं सरबंसम कर दवां तां इह रिजल्ट मेरे कोल जिहड़ा हैगा नतीजा अपने आप आ जाएगा, ठीक है जी। लेकिन उहदे वास्ते मैनूं सोचना पएगा। की सोचना पएगा? देखो AC इस भुजा दे उत्ते आ, ठीक है जी,
ਤੇ AE ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਸੋਚਣੀ ਪੈਣੀ ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਭੁਜਾ AC ਹੋਵੇ, ਦੂਜੀ ਭੁਜਾ AE ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭੁਜਾ AB ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਭੁਜਾ AD ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਇੱਥੇ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੱਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਪਹਿਲੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ADE ਅਤੇ दूसरी त्रिभुज है ABC, त्रिभुज ABC। ध्यान नाल देखियो हुण ADE दे विच एक AD आ गई जिहड़ी दूसरी भुजा दे बराबर है, एक मेरे कोल AE आ गई जिहड़ी AC दे बराबर है। ABC देखो हुण इन्हां दोनां त्रिभुजां दे विच, इन्हां दोनां त्रिभुजां 'च आ ते आ कोण बराबर हो गए ते आ ते आ भुजा बराबर हो गईयां, दो भुजावां बराबर हो गईयां। ठीक है, उन्हां नूं लिख दिंदे आपां इत्थे लिखांगे पहले लिखांगे ADE वाला, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ AD बराबर है AB ਦੇ। ठीक है जी, दूसरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ AE बराबर है AC। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਲੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦਾ ਕੋਣ ਬਰਾबर ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜੇਗੀ। लेकिन पंगा कितने पै रहा, कोण मैनू आ बराबर दिते आ, आ वाला हिस्सा इस हिस्से की तो कोई गल ही नहीं की उन्हें। ते कोण मैनू किहड़ा चाहिदा है BA ते C, मैनू कोण चाहिदा है BAC, लेकिन उन्हें गल की है BAD। ठीक है जी, ਇਹਦਾ मतलब मेरे को कोण का थोड़ा जिहा पंगा पेगा। मैं इनू ठीक किवें कर सकदा, ये कोण है एक, ये कोण है दो, ये विचकार मैं कोण नंबर 3 पा लेना। मैनू कोण एक बराबर कोण 2 ये दिता है, कोण एक बराबर कोण तो दिता है, लेकिन मेरे काम का नहीं है। हुण मैं की करांगा, कोण 1 जमा कोण 3 बराबर कोण 2 जमा कोण 3। मैं की कीता, जिहड़ा विचकारला कोण है उहनूं इधर भी जोड़ लिया ते उधर भी जोड़ लिया, दोनों पासे जोड़ लिया। क्योंकि मैथमेटिक्स दे विच, मैथमेटिक्स ऑफ अलजबरा ये गल कहंदा कि जेकर बराबर चीज नूं बराबर दे दोहां हिस्सां दे विच जोड़िया जावे तां ओहदे रिजल्ट दे विच कोई फर्क नहीं पैंदा। एक चीज है, आ दो रकमां आपस दे विच बराबर ने। ठीक है जी, इन्हां दे विच एक बराबर क्वांटिटी यानी कि 3 मान लो, इको क्वांटिटी दोनों जमा पासे ऐड की जाए तो आंसर दे विच कोई फर्क नहीं पेगा। आंसर जिहड़ा इक्वालिटी दे विच कोई फर्क नहीं पेगा, इक्वालिटी जिहड़ी हैगी है वो बराबर ही रहेगी, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो दोनों पासे बराबर दा ही होएगा। ठीक है जी, चलो ये चीज लै हुण कोण 1 जमा कोण 3 किहदे बराबर है जी, कोण 1 जमा कोण 3 है BAC, कोण BAC बराबर है। कोण 3 ते कोण 2 किहदे बराबर ने जी DAE, कोण DAE। हुण देखो इनू नंबर पा लो 3, आ वाला नंबर सी 1, आ नंबर सी 2 ते आ नंबर 3 हो गया। हुण एक दे विच किहड़ी भुजा कही गई AD, दूजे पासे किहड़ी कही गई AE। देखो AD ते AE, AD ते AE दे विचकार किहड़ा कोण है, आ वाला, इहदा वाला कोण दा नाम की है DAE। गल बन गई, बिल्कुल ठीक है। दूजे पासे आओ, भुजा किहड़ी कही गई है जी, एक हैगी है जी अपने कोल इधरले पासे आ जाओ, एक हैगी AB ते दूजी हैगी है जी AC। ठीक है जी, AB ते AC दे विचकार किहड़ा कोण है जी, आ वाला। ठीक है जी, इस कोण दी गल करनी हुण आपां। हुण इह कोण दा नाम की है जी BAC, BAC आ भी गल बन गई। ਇਹਦਾ मतलब जो मैनू चाहिदा सी वो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ आ गया है, इस करके ਅਸੀਂ लिखांगे 1 2 ਅਤੇ 3 ਤੋਂ ਕੀ सिद्ध ਹੁੰਦਾ है जी, त्रिभुज ADE बराबर है, सर्वंगसम है त्रिभुज ABC दे। जेकर आ दो त्रिभुजां आपस दे विच सर्वंगसम हो गईयां, ਇਹਦਾ मतलब BC बराबर है DE दे। ਇਹਦਾ मतलब हो गया BC बराबर DE। कारण है CP CT, CP CT का अर्थ की है जी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, या फिर सर्वंगसम त्रिभुजां दी संगत भुजावां, सर्वंगसम त्रिभुजां दी संगत भुजावां भी आपस में की होंदियां ने, बराबर होंदियां। चलो आओ विद्यार्थियों आपां चलिए अपने नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम है जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी लगभग इस ही तरह का है, इहदे विच भी असीं इहनूं बड़े ध्यान दे नाल ते सोच समझ के करांगे। क्वेश्चन नंबर 7 है विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 7 वाल चलिए, जो कि मैं इहदे लिखिया होया है, इसमें एक बार पढ़ते हां। AB एक रेखाखंड है अते P इसका मध्य बिंदु है।
देखो ए भी एक रेखाखंड है ते पी इसका मध्य बिंदु है। डी अते ई, डी अते ई रेखाखंड ए बी दे इक्को पासे दे बिंदु इस तरह हैं कि कोण BAD, BAD अते कोण, इस कोण की गल कर रहा, कोण BAD बराबर है कोण ABE, ABE ए वाला कोण इस कोण के बराबर है। अते दूसरा है EPA, EPA आ वाला कोण बराबर है DPB, DPB ये कोण आपस में बराबर हैं, यानी कि आ कोण दो बराबर हैं ते आ दो कोण आपस में बराबर हैं। ते होर चीज की है AP जिहड़ा हैगा है वो मध्य बिंदु है AB दा, P जिहड़ा हैगा AB दा मध्य बिंदु है, इसलिए AP बराबर PB जो है ये साडे कोल दिता होया है। ते आ दो चीजां जिहड़ियां हैगियां त्रिभुज DAP, DAP अते त्रिभुज EBP नूं जिहड़ा हैगा असीं सरबंसम प्रूफ करना चाहते हैं। किवें सरबंसम करांगे इन्हां नूं? पहले नंबर च सरबंसम प्रूफ करना, दूजे नंबर च यह सिद्ध करना कि AD बराबर BE है, यानी कि AD बराबर BE है, इन्हें सिद्ध करना। ਇਹਦਾ हल है, हल है जिहड़ी चीज सानू कही गई है पहले उन्हां त्रिभुजां की गल कर लईए। त्रिभुज DAP अते त्रिभुज EBP, EBP आ दो त्रिभुजां चक लीए बेटा। पहली त्रिभुज है DAP, DAP आ वाली त्रिभुज DAP ते दूसरी त्रिभुज है EBP, EBP आ दो त्रिभुजां। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोण A बराबर कोण B ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ चीज सानू ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ है कि कोण A बराबर कोण B है। दूसरी चीज है सानू AP बराबर PB। हुण ਇਹ ਕੀ है जी, ਉਹਨੇ किया AP बराबर PB क्यों है? क्योंकि P AB दा मध्य बिंदु है, ये चीज आ गई जी, क्योंकि P AB दा मध्य बिंदु है। उस तो बाद गल आ गई जी एदी सेम जिद्दां असीं 6वां सवाल कीता सी उसी सवाल दे तरीके दे नाल एदी थोड़ी जी दिक्कत आएगी तुहानूं। इहनूं आपां की करांगे, इहनूं नाम दे लो 1 दा, इहनूं 2 दा ते विचकार वाले नूं नाम दे लो 3 दा। तुहाडे कोल दित्ता होया जी साडे कोल 1 बराबर 2 ये दित्ता है। देखो आ 1 बराबर आ 2 तां सानूं दित्ता होया, असीं की करना है जिहड़ा विचकारला कोण 3 है उहनूं दोवां पासे ऐड कर दो। ਇਹਦਾ मतलब दोवां पासे जोड़न ते कोण 3 ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ जोड़ दो। देखो कोण 1 जमा कोण 3 बराबर कोण 2 जमा कोण 3, ये कोण 3 ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਲਾ ਸੀ दोनों पासे ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ जोड़ कर दिता। कोण 1 जमा कोण 3 की बन गया, कोण 1 जमा कोण 2 ये बन गया कोण APD, कोण APD बराबर है कोण 2 जमा कोण 3, कोण 2 ते कोण 3 जोड़ के की बन गया BPE, कोण BPE। ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਲਓ 3 ਦਾ, ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਇਹ ਨੰਬਰ 1 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1 2 ਅਤੇ 3 ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? 1 2 ਤੇ 3 ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ त्रिभुज DAP ਸਰਬੰਸਮ ਹੈ त्रिभुज EBP ਦੇ। ठीक है जी, EBP ਦੇ ਸਰਬੰਸਮ ਆ ਗਈ। क्यों ਸਰਬੰਸਮ आई है? कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण, ਇਹਦੇ ਨਾਲੇ ਸਰਬੰਸਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾर्ट ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਾर्ट ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਪਾर्ट ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। AD ਬਰਾबर है BE ਦੇ। देखो जी AD ਆ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ BE ਆ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਸਰਬੰਸਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਰਾबर ਹਨ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? CPCT। मैं फिर बोल रहा जी CPCT का अर्थ होता है जी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यानी कि ਸਰਬੰਸਮ त्रिभुजां ਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ भी आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹ 7ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 6ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है जी, पहली चीज दी सी सानू ओदा मध्य बिंदु, ठीक है जी, ते दूसरी चीज सानू ये कोण दिता होया सी। ठीक है जी, DAD ए कोण दिता होया सी। जिहड़ा तीसरा सानू अद्धा कोण दिता सी ओनू असी इस ढंग दे नाल उस अद्धे कोण दे विच यानी कि 1 ਅਤੇ 2 दे विच 3 जिहड़ा हैगा ਉਹ दोनों पासे ऐड करके असी अपना लोड़ींदा कोण बना लिया, जिहड़ा कि सानू ये पूरा कोण
ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਕੋਣ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ APD ਅਤੇ BPE ਇਹ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ 1 2 ਤੇ 3 ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵੰਗਸਮ ਹਨ। ਕੋਣ ਭੁਜਾ ਕੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਿਯਮ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ AD ਬਰਾਬਰ BE ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ CPCT ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜੀ ਸਰਵੰਗਸਮ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅਭਿਆਸ 7.3 ਦੇ 7 ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਤੇ 8ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ 8ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਲਈ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਉਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 7 ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 8ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਓ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ 7 ਪੁਆਇੰਟ ਅਭਿਆਸ 1 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਲੈਕਚਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।